welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, we are currently running the Math Mastery series of 72 days. Today is day 6 and we are on video number 2 of chapter number 11, that is areas related to circles. In the description box, you are given the links to the playlist of chapter number 10, which has 4 videos, and the first video of chapter number 11 link has been given separately. Also, the notes of chapter 10 and chapter 11 are now available for you to download. So, go to the description box, watch the previous videos, revise the concepts and come back again for the further concept. Let's begin with the easier questions first. Exercise 11.1, question 1 to 7. They are quite easy. So, let's begin with exercise 11.1, question number 1. Let's read out the question. Find the area of a sector with circle with radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degrees. Everything is given to you. R is 6 centimeters and angle theta is 60 degrees. The formula is pi r square theta upon 360. You have to memorize this formula. Okay, pi r square theta upon 360 is the area of sector. हमें बस ये r दिया है, थीटा दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. क्वाइट इजी, बट चेक करो कि पाई का वैल्यू क्या लेना है. 22/7 और 3.14. आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक कॉमन क्वेश्चन दिया है, कॉमन स्टेटमेंट दिया है कि अगर 3.14 स्पेसिफाइड नहीं है तो यू हैव टू यूज पाई एस 22/7. ओके, so here we will be using pi as 22/7. So area of the sector is equal to pi r square theta upon 360, which is equal to 22/7 into radius is 6, theta is 60 upon 360. 132 upon 7 centimeter square. That is your final answer. In the answers given in your NCERT textbook, they have not divided this, they have not converted this to decimals. So it's okay if you keep it like this. अगर आप decimals में convert करते भी हो, then also it is okay. It is the right answer. So the area, the answer is 132 upon 7 centimeter square. Let's read question number 2. थोड़ा सा अलग है, करना यही है, but थोड़ा सा different है. Let's see. Find the area of a quadrant of a circle with circumference 22 centimeters. See, quadrant मतलब क्या है? एक circle, उसका fourth part is the quadrant, correct? So fourth part मतलब 360 is divided into 4 parts. That is, each part has the value of 90 degrees. So आपका theta क्या हो गया? 90 degrees. Quadrant में quad stands for 4. ये याद रखना है. So the entire circle is divided into 4 parts. So 360 degrees होता है circle का पूरा angle. It's divided into 4 parts. So each angle is 90. और हमें find करना है इसका area. Radius आपको नहीं दिया है, आपको दिया है circumference. Circumference की formula क्या होती है? Circumference is nothing but 2 pi r. This is equal to 22 आपको दिया हुआ है, तो इससे आपको रेडियस मिल जाएगा 22 अपॉन 2 पाई, मतलब 22 अपॉन 22/7. अंडरस्टूड? ये कैसे किया? ये नीचे था पाई, तो नीचे 22 और न्यूमरेटर में 7. सो नाउ माई रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 7/2. आई वुड से डोंट कन्वर्ट दिस इनटू 3.5. नहीं करो, क्योंकि हम जब ये अप्लाई करेंगे तो वो पाई से कट हो जाएगा. लेट्स सी. So area of sector or area of quadrant is equal to pi r square theta upon 360, which is equal to 22/7. R is 7/2, square हो गया 7/2, और theta is 90 upon 360. This is what I was saying कि ये 7 कट हो जाएगा. So if you convert this to 3.5, आपको 35/10 लिखना पड़ेगा, फिर उसको कट करेंगे. इससे अच्छा है कि आप ऐसा ही रहने दो इसको. So 90 4s, this is coming out to be 22 into 7/16. इसको सॉल्व करेंगे 11 8 77 upon 8 centimeter square. So your area of the quadrant is 77/8. Again
आपके आंसर्स में यही दिया है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन ऑल्सो इट इज राइट, अदरवाइज ऑल्सो इट इज करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक. ओके, लेट्स गो फॉर रीडिंग क्वेश्चन 3 नाउ. द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर्स. सो सपोज OB एंड OA एक मिनट हैंड का पोजीशंस हैं, ठीक है. तो पहले OB पे था, फिर 5 मिनट्स के बाद उसने OA पर आके अटका है. तो हमें फाइंड करना है कि वो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वाइप करता है या कितना एरिया कवर करता है. तो लेट मी आस्क यू कि वो 360 डिग्रीज कितने टाइम में कवर कर रहा है. पूरा एक सर्कल वो कितने मिनट्स में कवर कर रहा है, 60 मिनट्स में, राइट. सो इट इज़ कवरिंग 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स. तो वो 5 मिनट्स में कितना डिग्रीज कवर करेगा, कितना डिग्रीज कवर करेगा. तो वी कैन गेट दिस इजीली बाय दिस. सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो ये क्या मिला है हमें मिल गया है थीटा 30 डिग्रीज, ठीक है. तो थीटा अगर 30 डिग्रीज है और रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर्स. कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू. करेक्ट, एरिया ही फाइंड करना है. तो वो 5 मिनट्स में कितना पोर्शन वो कवर कर रहा है. इफ दिस इज द क्लॉक, दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'clock, 7, 8, 9 o'clock, 10, 11 एंड 12. तो वो 5 मिनट्स में सपोज इट इज एक्चुअली 5:30 राइट नाउ, ठीक है. दिस इज योर टाइम राइट नाउ 5:30 PM और AM. सो दिस इज 5:30. तो वो 5 मिनट्स में कितना कवर करेगा, इट विल कम टू 5:40, करेक्ट. तो दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन. ये आर हैंड है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है. वो 5:40 मतलब 5 मिनट्स कवर करेगा, 5:30 to 5:40. सो इट इज़ कवरिंग 5 मिनट्स. तो ये मिनट हैंड यहाँ पे था, फिर वो मूव करके यहाँ पर आ गया, ठीक है. तो ये हमें फाइंड करना है कि ये रीजन कितना है, एरिया कितना है. तो हमने वही किया है कि ये एंगल वो कितना कवर करेगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. और रेडियस तो हमें दिया है, मतलब उसका लेंथ 14 सेंटीमीटर्स हमें दिया है. तो वी सिंपली नीड टू फाइंड पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. दिस इज नथिंग बट 22/7. थीटा इज 14, रेडियस इज 14, थीटा इज 30. If you solve this, you will easily get the answer. This is equal to 11 into 14 upon 3. Whatever the answer is the area covered by the minute hand in 5 minutes. Okay. Now this is question number 4. थोड़ा सा lengthy है, थोड़ा important भी है. ये पूछते हैं. This is one of the questions that is asked frequently in 2 or 3 markers. Let's see what is given. A chord of a circle of radius 10 centimeters, a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends right angle at the center, subtends right angle 90 degrees at the center. Find the area of the corresponding minor segment and the area of corresponding major sector. क्या फाइंड करना है वो पहले ध्यान से देखा करो, ठीक है. तो पहले हम माइनर सेगमेंट के लिए डील करते हैं, देन वी विल सी कि मेजर सेक्टर कैसे होगा, ठीक है. माइनर सेगमेंट में क्या आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा देखो. एक तो होगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है. तो वो मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से. सो लेट्स फाइंड आउट के सेक्टर का एरिया क्या है, माइनर सेक्टर का इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अगर मुझे डायरेक्ट करना है इसको, लेट मी शो कि आपको डायरेक्टली कैसे होगा. ये माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट. तो ये डायरेक्टली करते हैं यार. चलो, तो ये सेक्टर की फॉर्मूला लिखी और ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, हाफ. दिस इज राइट ट्राइंगल, तो दिस इंटू दिस मतलब हाफ आर स्क्वायर ही हुआ. सी बेस और हाइट सेम ही है और वो रेडियस ही है, तो वो आर स्क्वायर हुआ. दिस व्हाट आई डू हियर इज आई यूजुअली डू दिस कि आप जो भी कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकाल लो. तो आर स्क्वायर अपॉन 2 इज कमिंग आउट कॉमन, देख रहे हो. इनटू क्या क्या बचता है, पाई बचता है, थीटा बचता है और 360 में से 2 बाहर आ गया तो 180 बचता है.
और यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? सो लेट्स गो अहेड। r इज 10, सो 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन 2 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू थीटा क्या है, थीटा इज 90 अपॉन 180 माइनस 1। सिंपल है, ये 50 हो गया इंटू ब्रैकेट 250 ऐसे कर लिया, इंटू ब्रैकेट 9 2 2 157। तो ये हो गया 1.57 माइनस 1। अंडरस्टूड? कितना इजी हो गया ये अगर हमने कॉमन लेके कर लिया तो। दिस इज गिविंग मी 50 इंटू 0.57। इसको सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है, राइट? सिर्फ आपको 57 इंटू 5 करके जो भी पॉइंट्स को एडजस्ट करके आंसर लाना है। अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द वेज। दूसरा वे तो जो बेसिक हम करते हैं वही है कि माइनर सेक्टर फाइंड करो, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, फिर उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, हमने इस तरीके से किया है। जो मैंने नोट्स में किया है वो डायरेक्ट दिया है और मैंने इसको कॉमन लेकर नहीं किया है। I have given you separate methods in notes only because I want you to go through all the possible methods that we can do in a particular question. तो ये और ज़्यादा सिंपल हो गया। इसका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का आंसर हुआ। अभी मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। मेजर सेक्टर का कैसे फाइंड होगा आंसर? सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसमें से भी अगर आपको कॉमन ले लेना है तो इट बिकम्स ईजियर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 बच जाएगा सिर्फ। देखा, इजी हो गया। और पाई है 314/100 और आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर मतलब 100, कैंसिल आउट ही हो जाने वाला है। 1 माइनस 90 अपॉन 360, दिस इज इक्वल टू 314 इंटू ये हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4। दिस इज गिविंग मी 314 इंटू 4 माइनस 1 3/4। So this is nothing but 157 into 3/2. Solve this and get your answer in decimals. Easy है, बहुत easy है। 2-3 तरीके से हो सकता है। If you are not comfortable, go for the original method कि आप separately find कर लो। इससे क्या होता है कि आपका काम कम हो जाता है, कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? चेक योर आंसर्स। आप 2-3 मेथड से ट्राई करो। योर एक्सरसाइज और योर प्रैक्टिस शुड बी कि आप सेम सम को 2-3 मेथड से ट्राई करके देखो। आप कौन से मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यू विल ओनली रियलाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 5। उसमें 3 पार्ट्स हैं, सेम है। हमें एंगल 60 दिया हुआ है, रेडियस 21 है और हमें फाइंड करने हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये फर्स्ट टाइम आ रहा है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या है? इट इज पाई आर थीटा अपॉन 180, वो हमें यूज़ करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क होगा हमारे पास पाई 22/7 है। So pi r theta upon 180 will be 22/7. Radius is 21, theta is 60 upon 180. प्लीज़ मेक श्योर कि आप r स्क्वायर ना करो, क्योंकि वो लेंथ है तो वो सिर्फ सेंटीमीटर्स के टर्म्स में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। तो r इज नॉट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर हियर। मेक श्योर कि लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे कर रहे हो। 7 3s are 60, 3s are 3 cut. So we get 22 centimeters. Length of arc is 22 centimeters. Now we come to area of sector, which is nothing but pi r square theta upon 360. We have everything. So 22/7, r is 21, r square, theta is 60 upon 360. So 66, 7 3s are, 3 1s are, 3 2s are, 2 11s are. So this is 11 into 21. 231 centimeter square. So this is the area of sector. Now we go for area of segment. Like in the previous question, हम इसको भी डायरेक्टली करेंगे। लेट्स सी कैसे हो सकता है ये। ठीक है, डायरेक्ट करना अगर आपको कंफर्टेबल है
तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको फिर डबल डबल फाइंड नहीं करना पड़ेगा. बट इन दिस केस वी ऑलरेडी हैव द एरिया ऑफ सेक्टर. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सेपरेटली एंड देन सबट्रैक्ट देम. अगर आपको सीधा सेगमेंट का एरिया फाइंड करने को बोला होता तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो. लेट्स गो फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वीडियो, आप जाके देख सकते हो, लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, कि अगर ये एंगल 60 है और ये दोनों साइड्स तो इक्वल ही हैं बिकॉज दे आर द रेड आई, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स. So that is how entire triangle has 60, 60, 60 degrees. That is why it is an equilateral triangle. What is the area of an equilateral triangle? √3/4 side square. तो उससे हमें area of triangle मिल जाएगा. Side square. So this is equal to, you are not given the value of √3, तो उसको replace मत करो. अगर दिया है तो ही करना है. So √3/4 into 21 into 21. जैसा एक क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक एग्जाम्पल 2 में ऐसा आया था, 441 √3/4 इज योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो बस सिंपली यही करना है. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया, राइट. तो दिस इज इक्वल टू 231 माइनस 441/4 √3. बस खत्म. इतना बड़ा ही आंसर है बिकॉज आपको इसका √3 का वैल्यू नहीं दिया है. अगर √3 1.73 दे देते तो आपका ये डेसिमल में आता, तो फिर वो सब्ट्रैक्ट भी होता. बट एज यू आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ √3, दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A chord of a circle of radius 15 centimeters, chord of a circle with radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments. Minor and major segments. So for minor segment हमें क्या करना पड़ेगा? Area of minor sector minus area of triangle. Let's see how it can be done. For this one I am going to solve it separately. और प्रीवियसली हमने किया था डायरेक्टली कि सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया. तो आप यू कैन डिसाइड कि विच मेथड इज कंफर्टेबल टू यू. लेट्स गो फॉर सेपरेट मेथड. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? माइनर सेक्टर क्या होगा? इट इज πr²θ/360. वी हैव एवरीथिंग हियर. Pi you are asked to take 3.14, r is 15 centimeters and theta is 60 degrees. So let's just put in the values. So pi r square, so 314/100 into r square is 15 into 15 into theta is 60/360. 2 3s are 2, 157, 3 1s are 3, 5s are. I'll say don't do anything here, just multiply 157 by 75 and then divide it by 100, मतलब पॉइंट्स रख दो. 11775 और अपॉन 100 है तो 0.75. तो ये आया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ठीक है. अब हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ यू हैव टू मेंशन कि OA is equal to OB, therefore angles B and A are equal, therefore the triangle is equilateral triangle and therefore its area is √3/4 side square. अब हम अप्लाई करेंगे कि √3/4 साइड स्क्वायर एरिया हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल का. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is equal to √3/4 side square. Side square is nothing but 15 square, correct? So this is giving me 173/100. As you can see in the question, you are given कि यूज़ करो √3 का वैल्यू 1.73 into 15 into 15/4. Now as you can see कि यहाँ पे नीचे 4 है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट डेसिमल्स टेंस हंड्रेड्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि इसको भी 100 से डिवाइड कर ही लो. So 5 3s are 5 20s are 5 3s are 5 4s are. So what you get is 173 into 9/16, which comes out to be 97.3125 centimeters square. Obviously I am not going to show how this came. I multiplied 173 by 9 and divided it by 16. So I got 97.3125.
तो माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हुआ, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, दैट इज आई हैव 117.75 minus 97.3125 which I am getting as 20.4375 centimeter square. Clear? So this is the answer to the area of minor segment. To find the area of major segment, what we will do is we will find the area of circle first. Area of circle क्या होगा, pi r square, correct? So this is 314 into 15 into 15 upon 100, which turns out to be 314 into 225 upon 100. मल्टीप्लाई करो और पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो ये करने के बाद आंसर आ रहा है 706. तो ये आपका सर्कल का एरिया हुआ 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर मेजर सेगमेंट क्या होगा, इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस. सो 706.5 minus 20.4375 which gives me 686.0625 centimeter square. Make sure कि एरियाज या वॉल्यूम्स वाले जो भी क्वेश्चन है, डोंट मिस आउट ऑन राइटिंग द यूनिट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके भी प्रेजेंटेशन में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. ओके, सो या दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. Going ahead with question number 7, I am not going to solve it here for you. I'll just explain कि क्या करना है. आप एग्जाम्पल 2 वाला वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसमें भी सेम है, लिटरली सेम है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में 12 है, एग्जाम्पल 2 में 21 सेंटीमीटर्स था और कोई डिफरेंस नहीं है. तो आई हैव पोस्टेड द लिंक ऑफ दैट वीडियो जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन किया है. You can go and you can check कि ये कैसे होगा. I'll give you a hint, a subtle hint कि करना क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है, बीच वाला ट्राइंगल, वो उसको डिवाइड हो जाएगा वो हाफ में, 60 डिग्रीज हो जाएंगे. ये सेक्टर का तो आप फाइंड कर लोगे. क्वेश्चन 7 में बेसिकली इसका एरिया फाइंड करना है और एंगल है 120. तो सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 से फाइंड हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल, तो उसमें हम ट्राइंगल को 60 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, 120 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द थर्ड साइड. दीज टू ट्राइंगल्स आर मतलब इक्वल ट्राइंगल्स बनते हैं. देन वी अप्लाई, एक ट्राइंगल में हम साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू अप्लाई करते हैं एंड वी फाइंड द हाइट एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ओके, ट्राई फॉर योर सेल्फ, ये अपने आप ट्राई करो प्लीज. ऑल्सो नोट्स में विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ट्राई करो कि आप खुद से कर सको. अदरवाइज सब कुछ आपके पास है, एग्जाम्पल 2 में सेम है, नोट्स में तो पूरा का पूरा सोल्यूशन है. सो जस्ट ट्राई इट आउट. एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस. इजी हैं, वो भी इजी हैं, सिर्फ थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें, बट अगेन कैलकुलेटिव हैं. तो यू हैव टू मेक इट ईजियर फॉर यू कि कैलकुलेशंस कैसे ईजी हो सकते हैं. तो वी विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए रिवाइज करो, कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करो, ट्राई वन सम इन 2-3 डिफरेंट मेथड्स हैं, पॉसिबिलिटीज, देयर आर मल्टीपल मेथड्स यू कैन यूज़. तो वो ट्राई करो. जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि एक तो डायरेक्ट मेथड है सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो आपको सीधा सेगमेंट मिल जाएगा. सेक्टर का सेपरेटली, ट्राइंगल का सेपरेटली एंड देन सब्ट्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो अ मेथड. तो ट्राई दोज मेथड्स ऑन योर ओन और देखो कि विच मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ. ओके, wait for the next video which is coming up tomorrow itself and keep watching us. Thank you so much.